everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लास करेंगे, जो कि आपका क्लास नंबर 90 है। ऑलरेडी हमने 89 क्लासेस कर लिया है, सो प्लीज़ अगर आपने अभी भी नहीं गो थ्रू किया है तो एक बार जाके गो थ्रू कर लो, सो दैट हमने जो भी वीडियोज़ डाली हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली जो भी हम वीडियोज़ डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके पास पहले पहुँचे। एंड अगर आप हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम एडवांटेजेस ऑफ सास डिस्कस करने वाले हैं। क्या एडवांटेजेस होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के, और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर के जो कंसिडरेशन है सास से रिलेटेड फॉर द सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज, तो हम उसके रेफरेंस में भी बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज जो एडवांटेजेस ऑफ सास। एंड द फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस इज there is a faster time to value the improved productivity. यहाँ पे जो faster time होता है for the value that improve the productivity when compared to the long information implementation cycle and failure rate to enterprise software. SaaS, that is software as a service, is offering a feature the biggest cost saving over the installed software by eliminating the need for enterprise to install and maintain the hardware, pay labor costs and maintenance the application as well. So these were the advantages that is used for software as a services. And the third advantages that is software as a services can be used to avoid the customer development cycle to get the application to the organization quickly. तो जो आपका कस्टमर का जो डेवलपमेंट साइकिल होता है उसको वो अवॉइड कर सकते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे उसको ज़्यादा अच्छे से इन्हांस कर पाए, उसको ज़्यादा अच्छे से हम यूज कर पाए। And SaaS, that is software as a services, vendors typically have very accurate securely audit. So SaaS जो software as a services है उसके पास vendors होते हैं, typically आप कह सकते हो accurate security audits उनके पास होते हैं. So that what these are the four advantages of software as a services that you have to go through with. And after that we will discuss the software considerations in SaaS that we have to discuss in this class only. With reference to the software consideration in SaaS, that is software services, using the existing software paradigm, the user purchases a software package and the license by paying a one-time fee. The software then become a property of the user who bought it. तो जिसने भी उसको bought किया होगा एक बार आप फीस देते हो और सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए, एंड उसके बाद वो आपका ही हो जाता है. The support, you can say the property is for the users who bought it. Support and update are provided by the vendors under the terms of the license agreement. This can be costly if we are installed the new application on the hundred or the thousands of computer. तो हम उसी application को जो खरीद के लाते हैं वन टाइम फी देते हैं, उसको फिर हम कितने भी कंप्यूटर में, चाहे 100 ऑफ कंप्यूटर हो चाहे 1000 ऑफ कंप्यूटर में, अगर हम इसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हमें उसको इंस्टॉलेशन का कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा. SaaS, that is software as a services, has no licensing. उसकी कोई भी लाइसेंसिंग नहीं होती है. rather than buying the application we pay for it through the rate of the subscription and we only pay for what we use. if we stop paying, देखो अगर हम बात करते हैं कि उसके लिए सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे हम कोई लाइसेंसिंग तो होती नहीं है, तो हम सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ही पे करते हैं. अगर मान लो हम नहीं पे करते हैं तो हमारे कैसे, अगर हम स्टॉप कर दे पे करना तो हमारा क्या प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है उसका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज का, दैट व्हाट यू हैव टू सी इज, यहाँ पे क्लाइंट है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है www, और ये आपका क्लाइंट वेंडर है. तो दिस आर द क्लाइंट वेंडर जो है वो www को, द वर्ल्ड वाइड वेब को देता है कनेक्शन, दैट कैन बी यूज बाय द क्लाइंट. सो ये ऐसा होता है, अगर हम स्टॉप कर देंगे पे करना तो भी हम उसके आगे फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे. बट सब्सक्रिप्शन बेस हम क्योंकि पे करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे हम उसको क्या जितना यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते हैं हम उसी का ही सिर्फ पे करते हैं. ऐसा नहीं है कि हमको सारी चीज़ों के लिए पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब हम जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसी चीज़ का ही पे करेंगे, एंड दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ गुड ऑल्सो, एंड इट डज नॉट हैव अ लाइसेंस ऑल्सो. सो दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस, दैट देयर आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ द SaaS and as well as software consideration in the SaaS also. So class आज के लिए इतना ही. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Thank you.